चिल्ड्रन आज हम लोग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने मोशन, उनके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आप लोगों ने थ्योरी पूरी पढ़ ली होगी। इसका एक और था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जब वो हटा दिया गया तो इसका मतलब उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम माइनस कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। एनसीईआरटी page number 128 and the question number is 1. An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for an object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide the reason. इसमें क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अगर ये पॉसिबल है तो ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग इन नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होगी। अगर ये भी है देन स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस अ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द velocity. If no, provide the reason. Yes, it is possible an object is moving in some direction में मूव करेगा with the constant velocity, will continue in its state of motion as long as there are no external unbalanced force acting on. इसमें कोई भी external force acting नहीं हो। In order to change the motion of an object, some external and unbalanced force must act upon it. कुछ external force act होगा इस पे। ठीक है चिल्ड्रन, तो आई होप कि इतना क्लियर होगा कि इसमें भी इस पॉसिबल है, ये पॉसिबल कंडीशन है कि सेम कि सम इस डायरेक्शन में सम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी with the same and continue in its state of rest of motion. There is no external unbalanced force acting on in order to change the object. Some external unbalanced force must act on it. Now the next one is, the second one is, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. अगर carpet को हम लोग beat करते हैं तो dust निकलता है, क्यों? When the carpet is beaten with a stick and the stick exert a force on a carpet which sets in its motion, the inertia of dust particles residing of the carpet resets the change in the motion of the carpet. Therefore the forward motion of the carpet exert the backward force on the dust particle. हम आगे की तरफ लगाते हैं लेकिन जो कारपेट का डस्ट है वो बैकवर्ड की तरह आता है, सेटिंग देम इन द मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज़ वाई द डस्ट कम्स आउट ऑफ द कारपेट व्हेन बीटेन. यही इसका रीज़न है कि कारपेट को बीट करने पे उसके डस्ट पार्टिकल्स आते हैं. इज दैट क्लियर? आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3. Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? क्यों ऐसे कहा जाता है कि किसी भी लगेज को जो रखना चाहिए वो बस के रूफ में of the, क्यों एडवाइस दी जाती है? When some luggage is placed on the roof of the bus when the initially at rest, the acceleration of the bus is forward direction. जब बस चलना शुरू करती है, रेस्ट में होती है, तो वो आपको शायद पता होगा with an x फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है. ठीक है, तो उसके तरफ फोर्सेस होता है in the direction on the luggage. In the similar manner, when a bus which is initially in a rest of motion suddenly comes to the, जब रेस्ट में आती है तो ब्रेक लगाने के बाद हम लोग कहाँ की तरफ गिरते हैं? पीछे की तरफ गिरते हैं. ठीक है, suddenly due to the rest application brakes, a motion is exerted on depending on the mass of the luggage and magnitude of the force. The luggage may fall off the bus due to inertia. Tapping up the luggage will secure its position and prevent it falling off the bus. जिसके कारण ये डिपेंड होता है मास, लगेज के मैग्नीट्यूड जो होता है उसका फॉल करता है ऑफ द बस पे, एंड लगेज में फॉल ऑफ द बस ड्यू टू द इनर्शिया के कारण. टाइपिंग अप द लगेज विल सिक्योर इट्स पोजीशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द बस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Fourth question. A batsman hits a cricket ball which when then rolls on the level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to the stop. धीरे धीरे रोल करने के बाद वो क्या होता है, स्टॉप हो जाती है. फर्स्ट, the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity of proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, and so ball would want to come to rest. इसमें भी देख लीजिए क्या है कि इसमें कौन सा रीज़न रहेगा. व्हेन द बॉल रोल्स ऑन द फ्लैट सरफेस ऑन द ग्राउंड, इट्स मोशन अपोज टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण बोर्ड रोल कर पाती है. द फ्रिक्शन अराइजेज बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल. द फ्रिक्शन फोर्स इवेंचुअली स्टॉप्स द बॉल, राइट. Therefore the correct answer is C. If the surface of the level ground is lubricant and the friction arises between the ball and the ground will reduce, which will enable the ball to roll for a longer distance, जिसके कारण वो longer distance तक जा सकती है. Clear children? Now the next question is question number 5th. A truck starts from rest, that means u is equals to 0, rolls downhill the constant acceleration. If the travel distance is 400 meter in 20 seconds, find its acceleration, find the force acting on it and its mass of 7 tons. 1 tons is equals to 1000 kg. तो क्या है देखिए, u is equals to 0, s is equals to 400 meter, t is equals to 20 second, a is equals to question mark, f is equals to question mark, m is equals to 7 tons. 7 tons में 7 into 1000 kg. तो फर्स्ट पार्ट इज s is equals to ut plus half at square. f s की वैल्यू 400, u 0 हो गया, सब कर दिया और 20 कैंसिल आउट जिससे कारण ए की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब ए आ गया आपको हाफ सेकेंड पार्ट में क्या निकालना चिल्ड्रन, आपने देखा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास एंड एक्सेलरेशन एंड मास. एक्सेलरेशन आपका निकल गया, मास एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. एम की वैल्यू कितनी आई देखिए 7000 और ए इज 2, दैट मीन्स 14000 न्यूटन. क्लियर? आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. सारी स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ बता रहे हैं. Now the question number is 6. Clear? Question number 6 देख लीजिए. Number 6 is a stone of, देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सबके पास होगा भी. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, comes to the rest. After traveling a distance of 50 meter, what is the force of friction between the stone and the ice? तो इसमें होगा चिल्ड्रन m इज इक्वल टू 1 kg, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0. तो s की वैल्यू 50 मीटर दे रहा है, f क्वेश्चन मार्क है. b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2/8 बाय यूजिंग द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सब में निकाला u की v की वैल्यू 0, u इज 20, 2 इंटू ए इज क्वेश्चन मार्क. a जब निकल आएगा तो फोर्स भी निकल आएगा हमारा, इंटू 5 टू 10 100 हो जाएगा चिल्ड्रन. और जब ये 100 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स दिस इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 4 आ जाएगा. एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एम की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4, दैट मीन्स 4 न्यूटन. क्लियर है सभी को ना इतना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, हम समझ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज a 8,000 kilogram engine pulls a train of 50 wagons. Each is 2,000 kilogram along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 55,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं. देखिए चिल्ड्रन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रेन में कितना 40,000 लिखा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है -5000. फ्रिक्शन नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कर रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, देखिए 40,000 में 5000 माइनस किया 35,000. फर्स्ट पार्ट आ गया. सेकेंड पार्ट देखिए, टोटल मास 8000 प्लस 5 इंटू 20. देखिए 8000 दे रहा है, इंजन का है, और जिसमें ट्रैक में 5 वैगन्स रख दिए गए और ईच वैगन जो है वो 2000 का है. दिख रहा है सभी को ना, ये देखिए 2000 लिखा हुआ है यहाँ पर.
तो हमने 8,000 प्लस 5 इंटू 2,000 लिख दिया, दिस इज 10,000. 10,000 प्लस 8,000 दैट मीन्स 18,000. एंड f इज इक्वल्स टू m इंटू a इज इक्वल्स टू f बाई m. 35,000 अपॉन 18,000 डिवाइड किया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? आगे देखिए. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये न्यूमेरिकल्स हमने करके रखे थे चिल्ड्रेन, ताकि हम आप लोग को जल्दी ताकि हम एक्सरसाइज एक दिन में फिनिश कर सकें. ओके चिल्ड्रेन. 8 देखिए. An automobile vehicle has a mass is 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to stop with a negative acceleration is 1.7 meter per second square. तो देखिए m की वैल्यू 1500 दे रहा है, a इज माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, f इज इक्वल टू m इंटू ए. 1500 इंटू माइनस 1.7 इनको मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन्स 2550 न्यूटन. Therefore, the force exerted on 2550 Newton must act on the vehicle in the direction opposite to that direction of the motion. ठीक है, ध्यान रखिएगा. जो नेगेटिव साइन है वो हम लोग बता दिया करेंगे. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मोशन ऑफ इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज 9th का. What is the momentum of an object of mass is m moving with the velocity is v. तो फॉर्मूला क्या होगा? mv square half mv square that is mv. तो नाइन ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट मीन्स m into v. Clear? Now D is 10th is using a horizontal force 200 Newton. We intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force and what will the exert on the cabinet? तो चिल्ड्रेन देखिए 200 फोर्स लग रहा है. इसमें क्या है कि ये मूव कर रहा है वुडन कैबिनेट में अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी से. व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, इसका क्या होगा? तो देखिए द वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट, इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. देयरफॉर द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट 0. This implies that the opposing frictional force is equal to the force exerted on the cabinet, which is 200 Newton. That means the total friction force is minus 200 Newton. क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है, इसलिए हम लोग -200 बोल सकते हैं. क्लियर? नाउ चिल्ड्रन इसमें कुछ क्वेश्चंस क्रॉस किए हैं. एक क्वेश्चन हमने 11 क्रॉस किया है, अभी मैं आपको दिखाते 13 भी किया है, 14, 15, 17 एंड 18. क्यों किया है? क्योंकि ये जो है कोलिजन वाले पे है. जब आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही नहीं पढ़ाया जा रहा है तो हम कोलिजन वाला भी नहीं कराएंगे. जैसे देखिए इसमें भी कोलिजन यूज़ हो रहा है वर्ड. इसमें भी आपका तो हॉकी इज ट्रेवलिंग द स्टक, मतलब स्टक एंड हॉकी इज टू स्टिक एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल पाथ. दिस इज दिस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम, राइट? तो दैट इज इक्वल्स, दिस इज ऑल्सो बुलेट वाला, ये भी आपका है द मास ऑफ ट्रेवलिंग द स्टेट, ये भी देख लीजिए आप लोग. तो जो कुछ क्वेश्चंस हमने जो है क्रॉस किए हैं चिल्ड्रन, ये एग्जाम में भी नहीं आएंगे क्योंकि ये दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके चिल्ड्रन, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में तब आता जब आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए. According to the third law of motion, when we pushes on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it probably not move. A student justifies this answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. क्यों ट्रक नहीं मूव करेगी, उसका भी रीज़न है हमारे पास. Since the truck is very heavy mass, the static frictional force between the road and the truck is very high. When pushing the truck with the small force, and the frictional force cancels out of the applied force and truck does not move. This implies that the total forces are equal in magnitude but the opposite in direction. Therefore, the student's logic is correct. क्लियर? सभी को क्लियर है ना कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा था, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो पुश करने के बाद बैक ऑन अस भी इक्वल और अपोजिट फोर्स एक एक्ट होता है. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैसिव ऑफ द ट्रक पार्क्ड अलॉन्ग द रोड, से अगर ट्रक को पार्क किया जाता है तो विल नॉट प्रॉबेबली नॉट मूव. प्रॉबेबली नॉट. द स्टूडेंट जस्टिफाई द आंसरिंग कि टू अपोजिट इक्वल फोर्सेस लगते हैं जिनके कारण ये होता है. कमेंट ऑफ दिस लॉजिक, उन्होंने ये लॉजिक जो लगाया है क्या ये ठीक लगाया है कि नहीं, ये आपको बताना था. क्लियर? Now the next question is question number 16 and the last one is, ठीक है. चलो देखिए
16 देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए मास इज 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर per second is in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object and also find the magnitude of the direction of the force exerted on the object. तो मास दे रहा है चिल्ड्रेन आपको 100 दे रहा है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड. टी आपका 6 सेकेंड दे रहा है. इनिशियल मोमेंटम इज, तो इनिशियल मोमेंटम है चिल्ड्रेन वो m इंटू यू यानी 100 इंटू 500 kg मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल मोमेंटम इज m इंटू वी 100 इंटू 8 यानी 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे f इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है ना चिल्ड्रेन. देखिए f इज इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, लेकिन ए की जगह हमने क्या लिख दी, एम वी माइनस यू अपॉन टी. इसको मल्टीप्लाई कर दिए एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी. और एम वी की वैल्यू 800, एम यू इज़ 500, टी इज़ 6. 300 अपॉन 6 दैट मीन्स 50 न्यूटन. इज़ दैट क्लियर? तो आई होप कि इतना आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा आज मेरी क्लास का. तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. इसकी आप चाहे तो एडिशनल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है. कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है. जब अगर आप एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 4th वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेसिस पर है. क्लियर चिल्ड्रेन? तो अब और इसके बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इसके बीच की भी एक्सरसाइजेज. एक आपको 101 पेज नंबर में मिलेंगी, एग्जाम्पल्स भी हैं 101 पेज नंबर्स में मिलेंगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा. ठीक है चिल्ड्रेन? 101 आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रेन, 101 नहीं, हम इधर की बात को उधर, मोशन को उधर चले गए हम. आपको मिलेगा इस वाले में, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन वो बुलेट वाले पे है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद आप पूरी बुक में पूरा चैप्टर क्रॉस कर सकते हैं कंजर्वेशन. ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम आप छोड़ के आप सब कुछ पढ़ सकते हैं. ये कुछ आपको मिलेगा, नोट कर लीजिए, पेज नंबर 118 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप करिएगा सॉल्व. ठीक है, 118 में ही मिलेगा आपको. क्लियर? इतना आप कर लीजिएगा. उसके बाद सेकंड लॉ हमने पढ़ाई दिया है, फर्स्ट लॉ भी पढ़ा दी. एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा आप लोग बेटा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लीजिएगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद हमने क्रॉस कर ही दिया आपको. उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखिए, ये सब हटा दिया हमने, ये सब हटा दिया हमने. ठीक है, ये सब. तो ये इसके बाद देख रही हैं आप लोग, ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसके बाद आप कट कर सकते हैं अपना. क्लियर? दिखा रहे हैं हम आपको बुक में, ये देखिए. अब आई थिंक थोड़ा सा ब्लड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एनीवे तभी समझ में आ रहा होगा. देखिए ये कंजर्वेशन मोड दिखा सब बच्चों ने. ये वाला जो है बेटा, ये वाला पेज नंबर दिस ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही है. ठीक है, और एक्सरसाइज में क्या आप बुक खोलेंगे आपको समझ में आएगा. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पेज नंबर 123, 124, 125 and the last is 126 तक के आप क्वेश्चंस भी हैं और उसमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, आप थर्ड लॉ तक में जितना एक हमने बोला है बीच में 118 में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 118 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करना है. ये देखिए, दिख रही है सभी को? देखिए दिख रहा है सभी को? ये सारे क्वेश्चंस करिएगा आप लोग. ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच क्लास. थैंक यू.